Good morning, all my dear students. Standard 12. Solution for exercise 6.3. 1 to 9 complete. Question number 13. 10, 11, and 12 are same. Find the equation of all line having slope. Having slope given है means dy by ds equal to -1. Same slope to equation number 1 11 and slope 0 means dy by ds 0 for equation 1. Same process. Tangent to the curve. How many lines? Curve will be the 1 upon x minus 1. dy by ds given -1. How many tangent line which are curve will be the this now y equal to x minus 1 power 1. So that dy by ds minus 1 x minus 1 power minus 2 means minus 1 upon x minus 1 power 2. When you find out curve y dy by ds, now dy by ds equal to minus 1 cross multiplication. Now 1 x minus 1 equal to plus minus 1, where x minus 1 equal to 1 plus here, x equal to 2. If x minus 1 equal to minus 1, then x equal to 0. Then x equal to 0. Equation of line y equal to x equal to 2. Now two values find out x equal to 2 and x equal to 0. Slope now n dy by ds कैसे फाइंड किया? कर्व को dy by ds minus 1 upon x minus 1 whole square dy by ds in place of minus 1 x minus 1 whole square 1 plus minus 1. If may be consider plus x minus 1 x equal to 2 and consider negative x minus 1 x equals to 0. If x equal to 2, then y equal to 1 upon 2 minus 1 1. A line will be passing through first point 2 by 2 1. Y minus y1 and x minus x1 equation of line passing through one point and slope. Point will be there, slope will be 2. Y minus 1 minus 1 x minus 2 y minus 1 x minus plus 2 minus x x plus y minus 3 equal to 0. First equation find out here. If x equal to 0, second y equal to minus 1. 0 minus 1 minus 1. Equation of line y minus minus plus 1. Slope minus 1 x minus 0 y plus 1 minus x. So x plus y plus 1 equal to 0. This is equation of line. Means 11 and 12 dy by ds given. Curve will be the derivate. Now find value x. If x value first, then y equation of line. Value second x
फाइंड y इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 13, 11th and 12th योर होमवर्क सॉल्व बाय दिस प्रोसेस। आपको इसी तरह से आना है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड कर में भी गिवन x स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर 16, दिस इज ए कर्व लाइक x, ये ओके, विथ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, मींस विथ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो dy by dx इक्वल टू 0। फर्स्ट क्या बोला, फाइंड पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑन द कर्व x स्क्वायर बाय 9 y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 इफ टेंजेंट, फर्स्ट बोल रहा है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। मैं कर दिया आपको लेफ्ट क्लास में x एक्सिस मींस फिगर में देख लो dy by dx फाइंड dy by dx, डायरेक्ट 2x by 9 प्लस 2y by 16 dy by dx इक्वल टू 0। dy by dx वैल्यू 0 डाल दो, 2x by 9 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। If x equal to 0, y square by 16 equal to 1, y equal to 16, y equal to plus minus 4। फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 4 एंड 0 minus 4, ये 0 4 एंड 0 minus 4। 2 point may be the parallel on x axis. Similarly, parallel to y axis, means dy by dx equal to infinite, means 1 by 0। तो in the same questions, इसी questions पे हमने dy by dx फाइंड किया इक्वल टू minus 2x upon 9 multiplied by 16 divided by 2y, 8 minus 16 upon 9 x by y, this is dy by dx। यहाँ से फाइंड करना dy by dx पैरेलल टू y axis 1 by 0 minus 16x upon 9y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9y equal to 0, that is y equal to 0। If y equal to 0, अगर y 0 है तो x equal to plus minus 3, that minus 3 0 and plus 3 0। This is the point on parallel to y axis। Okay? Slope parallel to x axis dy by dx, slope parallel to y axis dy by dx, infinite direct लिखेंगे 1 by 0 लिखेंगे, then cross multiplication y। Question number 14, find equation of
टेंजेंट एंड नॉर्मल गिवन द कर्व, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, सेम प्रोसेस में है। फर्स्ट लेवल y इक्वल टू x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0 मीन्स x की वैल्यू डिवाइड। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो स्लोप निकालना है। तो फर्स्ट फाइंड स्लोप, स्लोप मींस dy by dx 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर 26x माइनस 10 एट dy by dx एट 0 5 मींस x वैल्यू 0 माइनस 2 स्लोप मिल गया। ये किसका स्लोप हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप तुरंत स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करो। मैंने क्या बोला था? स्लोप ऑफ नॉर्मल मींस माइनस dx अपॉन dy 0 to 5 मींस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन k। जो स्लोप है टेंजेंट का उसको अपोजिट करके साइन चेंज, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फर्स्ट फाइंड स्लोप टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट, x1 y1 will be given, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 dy by dx at 0 to 5 x minus x, y minus 5 dy by dx minus 10 x minus 0 y minus 5 minus 10x इधर लेते आओ 10x plus y minus 5 equal to 2, that is equation of 10. Same find out equation of normal, equation of normal। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड y minus y1 is 5, स्लोप में भी फाइंड x minus 3 ले लीजिए साथ। y minus y1 minus dx upon dy 0 5 x minus x। सेम क्वेश्चन, सिर्फ स्लोप चेंज होगा 1 by 10 x minus 3 10y minus 50 equal to x minus 10y plus 50 equal to 0. This is equation of now. Same you solve second, third and fourth. Question number 15. Find the equation of tangent to the curve. कर्व कौन सा है? y equal to x square minus 2x plus 6. Which parallel to? दो ऑप्शन है, parallel and perpendicular. This curve equation of tangent which parallel to line किसके पैरेलल है? इसका टेंजेंट पैरेलल टू लाइन 2x minus y plus 9। दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व। मैं ये रफली कर्व बनाता हूँ,
ऐसा कर्व है, ये कर्व है। इक्वेशन ऑफ कर्व इट्स टेंजेंट लाइन, मान लो इसकी टेंजेंट लाइन ये है, टेंजेंट लाइन। फाइंड आउट क्या करना है, दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें यही फाइंड करना है, दिस लाइन इक्वेशन। ठीक है, गिवन क्या है, दिस टेंजेंट लाइन पैरेलल टू, ये हमारी लाइन गिवन है, ये पैरेलल है, पैरेलल टू 2x माइनस 1 प्लस 9। ओके, पहले क्वेश्चन में खूब अच्छे से कंक्लूजन कर लो, तब सॉल्यूशन करो। गिवन कर्व टेंजेंट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फाइंड करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ये कर्व दिया है y इक्वल टू, बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको फाइंड करना है, दो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, एक तो पासिंग पॉइंट, दूसरा स्लोप, मींस dy बाई dx। इन दिस क्वेश्चन हमें सिर्फ मोटिवेट किया है, ना तो पॉइंट दिया है ना तो स्लोप दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमको ये दोनों निकालना पड़ेगा। जब ये पॉइंट और स्लोप निकल जाएंगे तो ही तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट होगी, अदरवाइज ना। अब आप सोचो कि स्लोप कैसे मिलेगा या पॉइंट कैसे मिलेगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखो स्लोप दिया था तो पॉइंट निकाल दिया था, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लोप कैसे मिलेगा। अब जाकर देखो तो मैंने लिखा था, इफ टू लाइन आर पैरेलल स्लोप आर इक्वल, दिस लाइन की स्लोप इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मींस पहला स्टेटमेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप इसका क्या था, टेंजेंट का स्लोप आ गया dy बाई dx, इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2x माइनस y इक्वल टू 2x प्लस 9, y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर स्लोप dy बाई dx इक्वल टू 2। मिल गया इसको, इसका स्लोप मिला लाइन का, दिस लाइन इज इक्वल टू द पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन, फाइंड आउट स्लोप। इसी वक्त आप जो है नॉर्मल भी पूछ रहा है, ओनली टेंजेंट पूछ रहा है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, स्लोप हमको मिल गया 2। अब पॉइंट कैसे पास करेंगे, पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हेल्प करोगे, हेल्प ले लो, इसको dy बाई dx कर दो, 2x माइनस 2, स्लोप की वैल्यू डाल दो, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। एक पॉइंट तो हमको मिल गया, y कैसे मिलेगा, ये 2 की वैल्यू इस फंक्शन में डालो, y इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7, देन फाइंड आउट 2 एंड 7। हमारे पास सब कुछ हो गया, पॉइंट भी फाइंड आउट हो गया और स्लोप भी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 7 and 2x माइनस 2, y माइनस 7 2x माइनस 4, सबको इधर डालो, 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल आसानी से आपको मिल गया। एक बार आप और उसको देख लो। ओके, सही है।
आंसर पे y माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली परपेंडिकुलर, अब इक्वेशन हमारा यही है, टेंजेंट जो लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट लाइन। वो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5y minus 15x equal to 30, 5x minus 13y, 5y minus 15x। अब आप सोचो 5 स्लोप, y equal to 5 3x प्लस 13 by 5 n की वैल्यू 3 आ गई, इसका स्लोप 3 dy by dx, नॉर्मल स्लोप 1/3। अब आप dy by dx फाइंड आउट करके इसको वैल्यू करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो। Now exercise 6.3 for remain solve some questions, उसको मैंने सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू ट्राई, आप ट्राई करो, सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। एज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, approximate value। For our students, you know that square root 4 क्या होगा, 2। बहुत अच्छी। स्क्वायर रूट 9 बहुत आसानी से, स्क्वायर रूट 16 बहुत आराम से आप लोग मुझे, क्यूब रूट 27 3, क्यूब रूट 8 2, क्यूब रूट 64 4, क्यूब रूट 125 5, sin 30 1/1, sin 45 1/1, tan 60 root 3, cos 60 1/1। You know that already, you find out। Similarly, log 10 1, log 100 2, log 2 वेरी होप पता है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, रूट 5 रूट 6 रूट 11 रूट 17 रूट 63 रूट 37 anyhow, cube root of 29, cube root of 6, cube root of 62, cube root of 115 plus or minus, sin 31, sin 46, tan 63, cos 59। इसके लिए आपको किसका हेल्प लेना
कैलकुलेटर का मदद लेंगे हम, क्यूब रूट के लिए लॉग का यूज करेंगे हम, इसके लिए साइन टेबल का यूज करेंगे। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यूज ऑफ एप्लीकेशन आप देंगे, हम आपको डेरिवेटिव एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम लगे चलेगा, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका क्यूब रूट फिफ्थ रूट ना हम निकाल सकते हैं। ओके, अब आप बात करो रूट 6 की, तो रूट 6 के नियर में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट है? वो क्या है? 4। क्या है? 4। यहाँ बेटा रूट 6 निकालने के लिए इसके लिए अबाउट 4 डेल्टा एक्स क्या है? 4 में हम कितना ऐड कर दें कि 6 मिल जाए डेल्टा एक्स। रूट 5 के नियर अबाउट 5 स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4। डेल्टा एक्स क्या आएगा? 1। ओके, रूट 8 मान लो, हाँ रूट 8 के लिए विच वैल्यू प्रेजेंस ऑफ स्क्वायर रूट आपके माइंड में रूट 9, तो x की वैल्यू 9, डेल्टा x +1 की -1, 9 में +1 करेंगे तो 10 होगा, अगर रूट 10 होगा तो डेल्टा x की वैल्यू +1, रूट 8 है तो डेल्टा x की वैल्यू -1, इफ रूट 7 डेल्टा x -2, रूट 17 नंबर नियर लोअर आर पर जो बिल्कुल नजदीक हो, 25 नहीं लेंगे क्योंकि 25 बहुत ज्यादा है। रूट 17 के नियरेस्ट विच नंबर इज प्रेजेंस ऑफ स्क्वायर रूट? 16, x इक्वल टू 16, तो डेल्टा x 16 विल बी एट 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्वेश्चंस में पहला ये पॉइंट देखते हैं कि which number is near about presence of square root, cube root and fourth root and sin 31 के नियरेस्ट 45 नहीं है क्योंकि sin 45 वैल्यू फाइंड आउट है, लेकिन 31 के नियरेस्ट कौन है? 30 है, तो x की वैल्यू 30, डेल्टा x क्या हो जाएगा? 1। इफ sin 28 x की वैल्यू 30, डेल्टा x इक्वल टू 30 में कितना माइनस करेंगे तो -2 होगा। क्या होगा? -2। तो फर्स्ट फाइंड आउट नियरेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्क्वायर रूट। अब उसमें से जो हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो प्लस करने पे आएगा स्क्वायर रूट 63, तो 63 के नियर अबाउट प्रेजेंस ऑफ स्क्वायर रूट 64 मींस 8, तो डेल्टा x की वैल्यू 64, अब 64 में से हम कितना माइनस करें? 63, दिस इज डेल्टा x। इसमें सिर्फ वन फार्मूला में भी यूज x प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस f डैश x डेल्टा x, यही एक फार्मूला इसके तरह आपको यूज। x मींस वैल्यू डेल्टा x, नाउ fx f डैश x डेल्टा x। मान लो हमने क्वेश्चन दिया रूट 5, चलो आपके पास रूट 2 की वैल्यू है, आपको क्लियर हो जाएगा 0.3010 1.4 जो भी है, तो बेटा x इक्वल टू 4, डेल्टा x इक्वल टू 1। अब बेटा f की वैल्यू
इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है x पावर 1/2, मान लो 4 पावर 1/2 मीन्स 2 ये वैल्यू रखेंगे जो भी है इसके अंदर x कोई हमने तो 1/2 लिखा है। f कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 x वैल्यू कंसीडर 4 to 1/4 फार्मूला x plus delta x f वैल्यू 2 plus 5 plus f dash x 1/4 delta x equal to 2 plus 1/4 4 to 8 9/4 is the value of square root of 5। मान लो आपको स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब 3 लेना है तो x इक्वल टू 4 डेल्टा x इक्वल टू -1 x पावर 1/2 मींस 4 पावर 1/2 2 f प्लस x वही सेम वैल्यू आएगी 2 to x 1/4 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डेल्टा x f 2 माइनस डेल्टा x वैल्यू माइनस है 1/4 4 to 8 7/4 7/4 डिवाइड करो 7 डिवाइड बाय 4 4 1 जा 4 3 0 4 7 जा 28 2 75 1.75 नियर तो क्लियर हो गया। सो दैट you solve by find cube root of 63। अब आप देखो cube root of 63 यहाँ x equal to 64 डेल्टा x equal to -1 f(x) equal to x power cube root 1/3 64 1/3 x वैल्यू है पूरा गया f dash x 1/3 x पावर -2/3 x वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 64 पावर 2/3 ये 4 पावर 3 4 4 जा 16 1/48 सीधे आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट f plus delta x here delta x is negative f equal to 4 minus f dash x 48 delta x 1 4 minus 1/48 solve by calculator या other to show that find cube root and square root okay। solve questions square root of 19 square root of 67 square root of 80 square root of 145 ये सबको आपको फाइंड करना है। क्यूब रूट ऑफ 29 cube root of 62 cube root of 127